So, we are starting today very interesting topic in surveying, that is surveying lines and type of chains. Okay. In last two classes we have discussed introduction of surveying, what is mean by surveying, and principle of surveying. There are the two principles of surveying. On the basis of those principles we have working onward in the field. Okay. So, today there is the surveying lines and chains we will discuss in this lecture. Okay. तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि सर्वेइंग लाइंस और टाइप्स ऑफ चेंज जो आएगा वो किस में। तो आप जो अगर एक टॉपिक को तैयार रखेंगे, आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस टॉपिक के तहत ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हम बता रहे हैं आपको कि जो आप जो स्टार्ट करेंगे इसमें वो लीनियर मेजरमेंट में स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ। आई एम इंद्रेश कुमार सिंह, faculty of BBD and IIT, Department of Civil Engineering. Okay. Now we start surveying and geomatics KC 302, and this is the mod 1 lecture number 3. Okay. So, here on the screen you can see that selection of survey station. Before we starting the selection of survey station, let me explain the main things we want to explain here. Okay. So, first of all we want to explain the linear measurement, okay, or linear measurement. Okay. यहाँ पर हम लोग लीनियर मेजरमेंट करेंगे, अभी एंगुलर मेजरमेंट नहीं, ओनली लीनियर मेजरमेंट करेंगे। और लीनियर मेजरमेंट में होता क्या है आपका, बेसिकली लीनियर मेजरमेंट में हम लोग हॉरिजेंटल डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ओके, हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजरमेंट। ओके, हम पहले आपको बता चुके हैं कि सर्वेइंग में आपको क्या करना है, मेजरमेंट जो मेन पॉइंट है वो ध्यान रखना है। अब क्या था, हमें पोजीशन मेजरमेंट करनी थी रिलेटिव द अदर पॉइंट्स, तो उसके बेसिस पे हमको मेजरमेंट्स करनी है। तो मेजरमेंट्स कई तरीके की हो सकती है, जैसे हॉरिजेंटल मेजरमेंट हो सकती है, एंगुलर मेजरमेंट्स हो सकती है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे, हमको जो लीनियर मेजरमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी और कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, तो वो चीज़ मेजरमेंट करने के लिए हम लोग आज के इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो वो हमारा है कि लीनियर मेजरमेंट है। लीनियर मेजरमेंट में क्या होता है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो होती है वो मेजर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मेजर करेंगे तो हमको क्या करना होता है, कहीं ना कहीं एक स्टेशन का हमको सिलेक्शन करना होता है। आप कहीं से स्टार्ट करेंगे तो एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ से हमको स्टार्टिंग करनी है मेजरमेंट की। ओके, तो अगर फील्ड पे हैं, आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे हैं, तो अगर वहाँ पे आपने स्टार्ट किया कि वी वांट टू स्टार्टिंग द सर्वे, so first of all we select a point from where we start the whole measurement of that site. Okay, so selection of survey station, first of all we select a point A. Okay, now from this point A we want to select the distance other stations. Okay, so let me explain this. If we select the first station and the last station of survey, okay, these are the main stations, means we want to survey the distance or the area between these regions. Okay, so we starting from here point A the surveying and reach the point B. Okay, so A to B, this the bounded area we want to survey. So, we selected the two stations, first is the A station and second is the V station. A station is the starting station and V is the last end stations. So, these two stations is known as the main stations. Okay, got it. And if we want to select some other stations between these two main stations, those are known as the subsidiary or secondary stations. Okay.
So, if we do not reach the A to B directly, so we have selected here other stations and we write down the in small letter. Okay. These are the representations, just like here a station and it is the small c, and here is a V, and this is the C. If we want to select a station here, so it is the small d. So, we know from here that the main stations always denoted by the capital letters, okay. And main stations, the two stations here selected A and V, and we write down the capital A and capital V. If we want to select a selection of the subsidiary or secondary stations to survey, because directly we can't survey the whole area from A to B stations, okay. Then we want to select or selection of the some other stations, those are not main stations, okay. So, we have point out those stations and point out on the graph or map by the small letters. So, if there are the small letter, we know that it is the tie stations or the subsidiary stations. If there are the capital letters notations, then we understand that it is a main stations, okay. So, here see in the following points should be kept in mind while selection a station. The stations should be mutually intervisible, okay. If you want to linear measurement, then the first point that the stations should be mutually intervisible. What is mean by this? Means if we want to measure the distance A to A, capital A to A, and if you do not see this point directly from here, point A, then we can't measure the distance. So, if we want to select a station, good station from where we start to measurement, then first point is that the stations should be mutually intervisible, means if one person is standing here and other person is standing here. So, you can see this person and this person can also see you, okay. Then they are the mutually intervisible. We select the stations like this, okay. So, the first point, the stations should be mutually intervisible. If there is any obstacle or interference between these points, then we select the other stations also, okay. We want to any stations here and name small x or small y any, okay. So, the stations should be mutually intervisible. The second point is the main principle of change surveying should strictly be observed. Means if we want to survey of the area, then the main principle of change survey should strictly be observed, okay. If possible, line through the whole length or the area should be drawn, okay. Other points, all triangles should be well defined, check lines should be provided in each triangles, and the other points is okay. So, all triangles should be well defined, a check line should be provided at each triangles, survey lines should be as few as possible, a number of tie lines should be drawn, position of survey lines should be such that to avoid obstacles to chaining and rangings. It should be on the level grounds and the side of the triangle should pass as close to the boundary as possible. मैंने ये पॉइंट्स पढ़े, आपके ये बात समझ में आई होगी कि these points, what is mean by these points, okay. So, these points explain mainly on the basis of the lines. So, my next slide. So, what is mean by the lines, okay. In surveying main there is the baseline, chain lines and tie lines. अगर आप लोग ये तीन लाइन के बारे में जब जान जाएंगे, देन आप बहुत ईजी तरीके से पूरा स्टेशन जो अभी हमने जो लास्ट वाले में देखा सिलेक्शन ऑफ सर्वे स्टेशंस, ओके, आपने सारे पॉइंट्स पढ़े होंगे, इन सभी पॉइंट्स में आपने देखा होगा कि लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, ओके. सो अगर हम बात करें कि लाइंस के बारे में ही सबसे पहले जान लें, तो उसके बाद में फिर सर्वे हमारे लिए और ईजी हो जाएगा, स्टेशन हमारे लिए ईजी हो जाएंगी, उसके बाद हमको कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएंगी, ओके. सो बेस लाइन, चेक लाइन्स एंड टाई लाइन्स. तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए कोई भी एक सिटी है
आपने एक सिटी जो आपकी थी, आपने इस तरीके से ये रीजन आपको दे दिया गया सर्वे के लिए। ओके, आपने क्या किया, यहाँ पे आपने सबसे पहले मेन स्टेशन सेलेक्ट की ए, बी, ओके, सी एंड डी। आपने कहा हम यहाँ से ये मेन स्टेशन सेलेक्ट करेंगे। आपने टोटल एरिया इस तरीके से सेलेक्ट कर रही कि अब इसको हमको सर्वे करना है। ओके, तो ये आपने जो मेन स्टेशंस बनाई हैं, उसके बाद में आप ध्यान रखिएगा जो ये मेन स्टेशंस को जोड़ने वाली होंगी वो हमारी मेन लाइंस कहलाएंगे। इसके अलावा और जो लाइंस होंगी वो टाई लाइंस कहलाएंगे, चेक लाइंस कहलाएंगे और सब कहलाएंगे। तो होल एरिया को सबसे लॉन्गेस्ट लाइन जो डिवाइड कर रही होगी टू पार्ट्स में इन ट्रायंगल फॉर्म में, याद रखिएगा। तो दो पार्ट में जो सबसे बड़ी लाइन डिवाइड कर रही है किसी भी एरिया को, तो वो लाइन हमारी कहलाती है बेस लाइन। ओके, देखिए मैंने इस सोसाइटी की बात की, ये पूरी एरिया आपको सर्वे करनी है अगर इसके बारे में, तो आप इसमें क्या करना है आपको कि हमने पहले चारों तरफ पूरे एरिया को बाउंड कर लिया, वहाँ पे हमने मेन स्टेशन ड्रॉ कर दी। मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई भी एक मॉल है, यहाँ पे कोई आपका टेम्पल है, ओके, इस तरीके से यहाँ पे कोई कॉलोनी है, यहाँ पे कोई शॉप है, इस तरीके से पूरे इसमें कॉलोनी में सब शॉप और दुकान सब इस तरीके से बनी होंगी। अब ध्यान देखिए, ये चीज़ें भी आप जानेंगे कि जो नोटेशंस होंगे वो भी आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो वो भी आपको जानने पड़ेंगे, वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि इस एरिया में पूरा लोग रह रहे थे, या मान लीजिए आपने जहाँ बनाना है तो आपका पूरा एक हमने टाउन को इसको डिज़ाइन किया है, इसकी सर्वे करनी है हमको वहाँ पे कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो इसके हिसाब से हमने मेन पॉइंट्स जो थे उन मेन पॉइंट्स पे ए बी सी हमने मेन स्टेशंस बनाए, उनको ज्वाइन करने वाली लाइंस मेन लाइंस हो गई, और पूरे एरिया को डिवाइड करने वाली एक लाइन जो सेंटर से पूरे एरिया से लगो निकल रही हो, तो वो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन जो होती है वो बेस लाइन कहलाती है। ओके, देन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय द बेस लाइन। सेकेंड इज द चेक लाइन्स एंड टाई लाइन्स। चेक लाइन्स क्या होंगी, जो ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे आप उसके अपेक्स से, ट्रायंगल के अपेक्स से जो भी लाइन डालोगे दैट इज द चेक लाइन्स। ओके, यहाँ से डाले आपने, यहाँ से यहाँ पे डाली, ये भी चेक लाइन कहलाएगी, ये भी चेक लाइन कहलाएगी। ये अपेक्स ऑफ ट्रायंगल है, मीन्स हियर इज द चेक लाइन्स, दिस इज द चेक लाइन्स। ओके, सो दीज आर द चेक लाइन्स, गॉट इट। मीन्स जो हमने एरिया को ट्रायंगल के फॉर्म में डिवाइड किया है, उस ट्रायंगल के एपेक्स से जो भी लाइनें हमारी बेस लाइन पे कहीं पर भी आप किसी भी एक पॉइंट्स पे डाल रहे होंगे, कोई भी कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करेंगे उसको हम लोग बेस लाइंस बोलेंगे। ओके, वो सॉरी चेक लाइंस बोलेंगे। बेस लाइंस कौन सी हमारी, जो मेन लाइंस जो हमारी टोटल एरिया को दो पार्ट में ट्रायंगल के फॉर्म में डिवाइड कर रही थी। ओके, गॉट इट। टाई लाइंस क्या होती है, जो चेक और बेस लाइन के अलावा जो भी लाइनें अगर होंगी जो यहाँ से ना स्टार्ट होकर किसी भी दो पॉइंट से अगर हमने यहाँ पे अगर ये लाइन डाली, दिस इज द टाई लाइंस। देखिए ये हमारे ट्रायंगल के अपेक्स से नहीं जा रही है, यहाँ से अगर आपने डाल दी ये लाइन, तो ये लाइन क्या हो जाएंगी, हमारे टाई लाइंस हो जाएंगे। ओके, गॉट इट। तो आई होप कि सभी लोगों की ये बात समझ में आ गई होगी कि बेस लाइन, चेक लाइन और टाई लाइंस क्या होता है। तो जब हम ये अपनी स्टेशन सेलेक्ट करते हैं, ओके, सर्वे सिलेक्शन करने से पहले हमको एक स्टेशन सेलेक्ट करनी पड़ती हो, वहाँ सारे हम इंस्ट्रूमेंट अपने रखते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं सर्वेइंग। जैसे कि हमें पता है कि इसमें हमको रिलेटिव पॉइंट्स, रेफरेंस पॉइंट्स यही सब मानने पूरे सर्वेइंग में। तो आप लोग ये समझ गए हो कि लाइन कौन सी होंगी, मेन लाइंस कौन सी होगी, बेस लाइंस कौन सी होगी, चेक लाइंस कौन सी होगी, टाई लाइंस कौन सी होगी। ओके, ये लाइंस के बारे में आप जान गए हो। ओके, और सर्वे स्टेशन के बारे में कि कौन सी स्टेशन कहाँ से सेलेक्ट करनी है, तो ये चीज़ आप समझ गए हो। तो जब अगर हम यहाँ पे स्टेशन हम लोगों ने सेलेक्ट कर दी हैं, इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करनी है। हमने लाइनें भी पूरी समझ ली हैं, लाइंस को हमने ड्रॉ कर दिया है। देन वी वांट टू द मेजरमेंट ऑफ दिस डिस्टेंस, हाउ वी मेजर दिस डिस्टेंस। ओके, एंड वी नो दैट दिस इज द लीनियर मेजरमेंट, ओनली लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं, अभी हम ट्रायंगुलेशन मेजरमेंट में नहीं जा रहे हैं। सो दिस इज द लीनियर मेजरमेंट। तो लीनियर मेजरमेंट आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमको पता है लीनियर मेजरमेंट के कई मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड्स होते हैं। ओके, आप मेजर कर सकते हो, कई तरीके के और इनडायरेक्ट मेथड होते हैं, तो उसमें वो सब EDM और भी कई तरीके होते हैं, उन सबको हम यूज करेंगे। ओके, नाउ वी कम द ऑन डेफिनेशन ऑफ द बेस लाइन्स और सम थ्योरी पॉइंट्स। द लॉन्गेस्ट, देखिए यहाँ पे जो हमने पूरा डिस्कस किया उसी के बारे में लिखा। बेस लाइन क्या है आप लोगों को समझ में आ जाएगा पूरी चीज़। द लॉन्गेस्ट of the chain lines used in the making a survey is generally regarded as the baseline। चेन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, चेन लाइंस की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि लीनियर मेजरमेंट करने जा रहे हैं और हम चेन सर्वे ही अभी करने जा रहे हैं। ओके, तो चेन के बारे में कर रहे हैं, इसीलिए हम चेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बिकॉज इट फिक्स अप द डायरेक्शन ऑफ ऑल द अदर लाइन्स सिंस द बेस लाइन्स इज बिल्ड फ्रॉम framework of the survey। It should be laid on the level ground as possible
as to the center and the length of the area, it should be करेक्टली मेजर्ड एंड शुड बी मेजर्ड ट्वाइस और थ्राइस, क्योंकि अगर बेस लाइन आपने गलत कर दी तो सारी मेजरमेंट में हमारे एरर्स आएंगी। ओके तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब बेस लाइन मेजरमेंट कर रहे हैं उसको ट्वाइस थ्राइस मेजर कर लें अच्छे तरीके से, उसकी पूरी एक्यूरेसी के साथ, चेन से, टेप से या जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, और उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से अगर ग्राफ बना रहे हैं तो उस ग्राफ पर भी हमको लिखना है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, यहाँ से पॉइंट समझ लीजिए अच्छे तरीके से, बेस लाइन के पॉइंट्स ये नोट डाउन कर लीजिएगा और इनको समझ लीजिए, और पूरा एक्सप्लेन किए हैं बेस लाइन के बारे में। उसके बाद जैसे चेक लाइन क्या होती है, चेक लाइन आल्सो कॉल्ड द प्रूफ लाइन्स is a line joining the apex of triangle to some fixed point on the opposite sides. Check lines is measured to check the accuracy of the framework. Okay, these lines also used for the accuracy for the framework. We draw the whole diagram earlier. So in that diagram we have seen that there are the main lines, main stations, and how we measure the lines distance. Okay, thus there is a complete check on the field measurement as well as the accuracy of the plotting work. Okay, so these are the check lines. क्यों यूज करते हैं, एक्यूरेसी के लिए यूज करते हैं। टाई लाइन्स आ गए, तो टाई लाइन्स क्या होती हैं, टाई लाइन्स जो हमने बात की थी, टाई लाइन्स होती हैं इज अ लाइन ज्वाइनिंग फिक्स पॉइंट टर्म्ड एज अ टाई स्टेशंस ऑन द मेन सर्वे लाइन्स। ओके, जो मेन सर्वे लाइन्स हैं वहाँ से कोई भी फिक्स पॉइंट करोगे तो उनको हम टाई स्टेशंस भी, जैसे लिखा है टाई स्टेशंस को ज्वाइन करने वाली लाइनें होती हैं उनको मेन लाइन से, तो उनको हम टाई स्टेशंस भी बोलते हैं, और जो लाइन ज्वाइन करती है हमारी तो उसको हम टाई लाइन्स भी बोलते हैं। ओके, टाई लाइन्स यूजुअली फुलफिल अ डुअल पर्पस, दैट इज इट इज चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फ्रेमवर्क एंड द इनेबल्स द सर्वे टू लोकेट द इंटीरियर डिटेल्स विच आर फॉर अवे फ्रॉम द मेन चेन लाइन्स। सो अब आप यहाँ तक ये समझ गए हैं, there are the three types of lines we have discussed, the base lines and check lines and tie lines. Okay, and we have selected the selection of survey stations. Okay, got it. So selection of the survey station main points वहाँ पे हमने select कर लिया, उसके बाद हमने lines के बारे में जान लिया है ये होते क्या हैं, हमने ये भी जान लिया कि अब हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ सर्वेइंग चेन की बात करेंगे। चेन की बात क्यों करेंगे कि जब लाइन के बारे में आप जान गए उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मेजरमेंट करनी है। तो मैंने बताया डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में आप क्या यूज कर सकते हो, अगर मान लीजिए कोई भी पॉइंट आपका ये दिया है एंड वे दिया है और लीनियर मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक करनी है आपको, तो आप क्या कर सकते हो इसको मेजर करने के लिए, या तो आप डायरेक्ट मेथड से ऐसे गेस कर सकते हो कि ये 5 मीटर है ए टू बी, और क्या कर सकते हो आप अपने चल सकते हो, ए टू बी जा सकते हो और आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय द लेग्स। ओके, पैर कदमों से कि इतने कदम है, ये डायरेक्ट मेथड हो गए। ओके, लेकिन जब हमको क्या हो सकता है इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने पड़ेंगे, तो इंस्ट्रूमेंट जो यूज करने पड़ेंगे ए टू बी मेजरमेंट करने के लिए जनरली आप यूज करते हो, सभी लोगों को पता है कि हम कैसे इसको मेजर कर सकते हैं। ए टू बी अगर बिल्कुल हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, प्लेन पर है, तो आप कैसे मेजर कर सकते हो, आप कई तरीके से मेजर कर सकते हो। तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा सकते हैं आप कौन कौन से यूज कर सकते हो, चेन यूज कर सकते हो, ओके, टेप यूज कर सकते हो, तो उन्हीं के बारे में जानना है यहाँ पे आपको कि चेन जो हम सर्वे में यूज करेंगे वो टाइप्स ऑफ चेन कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी जो बेसिकली हमारे इंडियन स्टैंडर्ड ने सर्वेइंग के लिए यूज की कि हाँ इंजीनियर्स के लिए ये वाली चेन सही रहेंगी, क्योंकि काम बहुत रहेगा, पूरा मेजरमेंट रहेगा, पूरा मेन स्टेशन मेजर करनी है, बेस लाइन की डिस्टेंस मेजर करके आपको पूरा ग्राफ बनाना है, क्योंकि हमारा सर्वेइंग है क्या, रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द पॉइंट्स या लोकेशंस जो भी हैं उन्हीं को मेजर करके, और उसका हमें आर्ट, एक या आर्ट है हमारी ये, उसको हम एक मैप या चार्ट पे ड्रॉ करके पूरा तैयार करना। ओके, तो फिर उसके लिए हमको स्केल लेनी होगी, वो अलग चीज़ हो गई। तो हमारी चेन पे हम आते हैं, तो हम अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट में आप समझ गए हो कि चेन चाहिए आपको, टेप चाहिए आपको, ओके, तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती, तो हम उसमें जो मेन बात कर रहे हैं वो इंजीनियर के लिए आपको लिए क्या चाहिए होगा, वहाँ पे चेन चाहिए होंगी, तो हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ सर्वेइंग चेन्स। ओके, सो टाइप्स ऑफ सर्वेइंग चेन्स जो हैं आपकी, फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप ऑफ चेन इन कॉमन यूज इन द सर्वेइंग। आप लोगों को पता है कि अगर हमको डिस्टेंस मेजर करनी है तो वहाँ पे हम कई इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट आप जान सकते हैं, लेकिन जब हमको एक्यूरेसी चाहिए किसी वर्क में, तो हमने अगर वहाँ पे मेन स्टेशन का सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद में हम लोग ये ड्रॉ कर दिए कि ये मेन लाइन हो गई, ये चेक लाइन हो गई, बेस लाइन हो गई हमारी, और उसके बाद टाई लाइन्स हो गई। ओके, सो अब हमको ये हम कैसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, तो हमको डिस्टेंस मेजर करनी है।
ओके जब डिस्टेंस मेजर करोगे तो कैसे डिस्टेंस मेजर करोगे, उसके लिए हमने बताया इंस्ट्रूमेंट में जो चेन है हमारी। तो चेन भी कई तरीके की होती हैं इंजीनियर्स के लिए सर्वेइंग में। ओके चेन हमारी जो बनती हैं मटेरियल्स की बनती हैं, ब्रास मटेरियल यूज होता है, आयरन यूज होता है, और जो भी हमारा मटेरियल यूज किया जाता है वो चेन बनाने के लिए। तो फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप ऑफ चेन कॉमन यूज इन द सर्वेइंग। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस जो चेन की रहेगी वो फिक्स रहेगी। यहाँ पे हमारी जो फॉलोइंग टाइप्स की दी गई हैं, मेट्रिक चेन, स्टील बैंड्स और बैंड चेन्स, गंटर चेन्स एंड सर्वेयर्स चेन्स इसको बोलते हैं, इंजीनियर्स चेन भी होती है, रेवेन्यू चेन भी एक दी गई है। ओके तो जो मेन आपके लिए मेट्रिक चेन है, स्टील बैंड्स और वाइंड्स चेन कहलाती है, गंटर चेन को हम सर्वेयर चेन भी बोलते हैं, इंजीनियरिंग चेन्स भी होती हैं, रेवेन्यू चेन्स होती हैं। इनमें होता क्या आपको, अब ये चेन्स हैं तो आपने देखी होंगी, जब भी आप लैब में जाएंगे तो वहाँ पे चेन्स देखेंगे, इनकी डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए, इनकी मेजरमेंट्स आपको पता होनी चाहिए, कैसे ये चेन्स बनती हैं, क्या इनका शेप होता है, उन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, वो हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए आपके लिए चेन हमने देख सकते हैं आप लोग कि ये कोई चेन दी गई है, इसका भी स्पेशल नाम है, हम अभी आपको बताएंगे। ये चेन देखो ऐसे दी रहती है, ये इसमें लगे रहते हैं, इनको जो हम बोलते हैं टल्ली बोलते हैं। ओके TALLY टल्ली। तो ये टल्ली हमारी यूज रहती है इस चेन में। ओके और ये देखिए एक हमारी पूरी है, उसके बाद यहाँ पे कड़ी ऐसे लगी हैं तो इसको लिंक बोलते हैं। ओके ये देखो आयरन की एक लिंक है और ऐसे करके यहाँ पे घुमा इस तो दूसरा वाला आएगा वो इसमें फंस जाएगा। तो इस तरीके से कैसे भी हमारा कैसे एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो दूसरी वाली आई वो ऐसे इसमें फंस गई, फिर ऐसे चली गई। तो ये लिंक कहलाता है। यहाँ पे देखो दिया है आपको चेन में, और ये हमारे टल्ली कहलाते हैं। ये कुछ डिस्टेंस पे लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं चेन, ये देखो 20 मीटर चेन गिवन है। ओके हम अभी बता रहे हैं इसके बारे में आगे, पहले आप सिर्फ चेन के बारे में जान लीजिए। दिस इज द, इसका ये हैंडल होता है, इस तरीके से हैंडल रहता है। उसके बाद में यहाँ पे ये ब्रास का हैंडल होता है और ईजिली टू होल्ड करने के लिए रहता है कि चेन को हम आसानी से होल्ड कर सके। उसके बाद ये देखो टल्लीज लगे होते हैं, इनको हम टल्लीज बोलते हैं। ये किस लिए होती हैं, ये हमारी मेजरमेंट एक्यूरेसी के लिए होती हैं, कि मान लीजिए अगर कोई डिस्टेंस है तो आपको ये लगी है तो आप वहाँ पे मार्क कर सकते हो, ईजिली ऑन द ग्राउंड मार्किंग कर सकते हो। इससे क्या रहेगा, आपको पता रहेगा कि हाँ ठीक यहाँ से यहाँ पर कितनी एक्यूरेट मेजरमेंट है। ये जो रहते हैं देखो, ये 1 मीटर पे ये पहला हमारा लिंक हो गया, 5 मीटर पे पहली टल्ली हो गई, दूसरी 5 पे, फिर 5 मीटर पे, फिर 5 मीटर पे, किस में 20 मीटर की चेन में। टल्ली एट द 10 मीटर इन लेंथ, टल्ली एट द 15 मीटर इन लेंथ। ओके ये ऐसे यूज की जाती है हमारी, ये 20 मीटर की पूरी चेन है। ओके तो ये चेन्स के बारे में हम जान रहे हैं। आप देख रहे होंगे मेटल की चेन है, इसमें हैंडल क्या होता है, टलीज क्या होती हैं, लिंक्स क्या होते हैं, होल्ड करने के लिए क्या होते हैं, ये सारी चीज़ आप यहाँ से जान गए। अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे देखो। तो ये जो मेट्रिक चेन है, मेट्रिक चेन्स आर मेड इन लेंथ 20 मीटर्स 30 मीटर्स। ओके तो जो सबसे पहली चेन आपको याद रखनी है दैट इज द मेट्रिक चेन। अब मेट्रिक चेन है तो उसकी लेंथ भी आपको पता होनी चाहिए ना, 20 मीटर की होगी, 30 मीटर की होगी, यही चेन होती है मेट्रिक। ये बिल्कुल फिक्स डिस्टेंस सबको याद रखनी है। तो जो अभी हमने डायग्राम आपको दिखाया था दैट इज द 20 मीटर चेन, देखो ये गिवन है यहाँ पे। ओके ये मेट्रिक चेन है, 20 मीटर वाली चेन है, और ये 30 मीटर की भी हो सकती है जैसे यूज होनी है। टलीज आर फिक्स एट द एवरी 5 मीटर लेंथ एंड द ब्रास रिंग्स आर प्रोवाइडेड एट एवरी मीटर लेंथ एक्सेप्ट वेयर टलीज आर अटैच। देख लो हमने यहाँ पे बात की थी, आप इस डायग्राम से देख सकते हो। यहाँ पे हैंडल है, ये आपके लिए लिंक्स प्रोवाइड किए गए, लिंक्स हैं यहाँ पे होल्ड कर, ये टल्लीज प्रोवाइड है, 20 मीटर की है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। ओके एक्सेप्ट टल्ली। गंटर्स चेन क्या होती हैं, इसी तरह के सारी चेन्स इसी तरीके से बनती हैं, लेकिन अब ध्यान रखना है कि उनकी लेंथ क्या है। मेट्रिक चेन 20 मीटर और 30 मीटर की पाई जाती है। गंटर्स चेन होती है, उनकी लेंथ जो होती है वो 66 फिट होती है, 66 फिट की लेंथ होती है गंटर चेन की, और नंबर ऑफ लिंक्स उसमें कितने होते हैं, 100 होते हैं। मतलब कि अगर कोई भी चेन यहाँ पे हमने इस तरीके से बनाई और ये चेन में क्या है ऐसे लिंक दिए गए हैं, तो ये लिंक हमारे कितने होंगे, 100 लिंक्स होंगे। ओके और लास्ट में एक और वो बनेगा, तो टोटल लिंक्स हमारे 100 होंगे, किसमें, गंटर चेन में। लेकिन उसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी 66 फीट की। ओके और ईच लेंथ, जो ईच लिंक होगा उसकी लेंथ कितनी होगी, ये हमारी ये 0.66 फीट। ओके दिखा है आपका। फिर यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस इन माइल एंड फ्रॉग लाइन्स। देखो जैसे कि आपको
यूनिट्स चाहिए होती हैं। अब हम गंटर चेन से गए, हमने बहुत सारी डिस्टेंस मेजर की, तो फिर हम उसको फिट में लिखते लिखते बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो उसको हम और छोटा तरीके से कर सकते हैं कि बड़ी एक हम यूनिट ले लें। तो देखिए फर लॉक्स आपके लिए लिखा है, तो यहाँ पे फर लॉक्स लिखा है, ये होता है 22 फीट यार्ड्स होता है, एकर्स में एरिया अगर मेजर करनी, क्योंकि एरिया टोटल है हमारी, तो माइल्स या फर लॉक्स एक यूनिट हो गई मेजरमेंट के लिए। इनको हम यूज करते हैं जब हम गंटर चेन यूज कर रहे होते हैं। ओके, तो ये चीज़ यूज करते हैं, याद रखिएगा आप, ये यूनिट्स हैं। उसके बाद में आएगी आपकी इंजीनियरिंग चेन। तो इंजीनियरिंग चेन क्या होती है, ये 100 लिंक की होती है, 100 मीटर की होती है। तो 100 फीट अगर है तो 100 ही लिंक इसमें होंगे 100 मीटर में, और 100 मीटर में 100 लिंक की होती है, और ईच लिंक कितना होगा 1 मीटर का होगा। ये यूज इन ऑल इंजीनियरिंग सर्वे हम यूज करते हैं इंजीनियरिंग की। तो याद रखिएगा इसमें 100 मीटर की होती है और 100 लिंक होते हैं इसमें। रेवेन्यू चेन एक आपकी अदर टाइप्स की चेन दी गई है, जो कि लेंथ इसकी होती है 33 फीट्स, नंबर ऑफ लिंक्स इसमें दिए रहते हैं 16। तो रेवेन्यू चेन एक स्पेशल टाइप की चेन जो है वो बनाई गई है, जो कि 33 फीट की है, और उसमें जो नंबर ऑफ लिंक्स हैं वो कितने हैं हमारे 16 हैं। ओके, कॉमनली यूज्ड फॉर द मेजरिंग फील्ड इन द कैडेस्ट्रल सर्वे, जब हम करते हैं तो वहाँ पे यूज किया जाता है। तो हमने आपको बताया ये कुछ टाइप्स ऑफ चेन्स हैं। ओके, इसके बाद में हम मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ मेजरिंग इन टेप्स इन सर्वेइंग। तो हमने आपको बताया कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ चेन की बात मैंने की, ओके, टाइप्स ऑफ टेप्स की भी बात कर लेते हैं, कौन कौन से, जैसे मान लीजिए ये हमारी आयरन की थी, लोहे की थी, ब्रास की थी। तो इसको हम जब यूज करते हैं ग्राउंड में तो कई प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, कई इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट में हमारी चेन थी, चेन से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। करना क्या, हमको लीनियर डिस्टेंस ही तो मेजर करनी है। ओके, तो वो डिस्टेंस मेजर आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड होता है कि सारे इंडिया में है या पूरे वर्ल्ड में है, तो वो हमारा फॉलो रहे, और वो फॉलो करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि आप इसी को यूज कीजिए और इसी के तहत चलिए, तो सभी लोग समझते रहेंगे चीज़ों को। तो चेन था आपका। ओके, और चेन को हमने बता दिया कि आप चेन से मेजर कर सकते थे A to B पॉइंट तक। और फिर आपका आता है टाइप्स ऑफ टेप्स। तो टाइप्स ऑफ टेप देख लीजिए यहाँ पे, टेप्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, क्लॉथ और लाइनन टेप्स, मटेरियल स्टील टेप्स, और इनवर्ट टेप, सिंथेटिक टेप्स। जैसे कि नाम है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे है, आपको इसमें पढ़ना है और जान लेना है कि क्या है। और यूज फॉर सब्सिडी मेजरमेंट, वेरी लाइट, इजी टू हैंडल, मे अफेक्ट बाय मॉइस्चर, जैसे क्लॉथ और लाइनन टेप्स है, ये हो गया। मेड ऑफ स्टील, मेटेलिक हो गई। टेप जो होंगे इनवर्ट, यूज फॉर द हाई प्रिसीजन वर्क के लिए इनवर्ट टेप यूज करते हैं, मेड ऑफ एलॉय स्टील होता है। एंड सिंथेटिक टेप जो होता है आपका, वो मेड ऑफ द ग्लास फाइबर PVC कोटिंग इंसारा बनाते हैं, ताकि हमारी मेजरमेंट एक्यूरेट रह सके। तो इसलिए ये हमारे टेप्स यूज होते हैं। आप लोग जब देखेंगे लैब में जाइएगा तो टैप देखिएगा इन टेप्स को और जानिएगा इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ओके, तो ये आपने आज देख लिया है, लाइंस क्या होती हैं, चेन क्या है हमारी, टाइप्स ऑफ टेप्स क्या है, आपके स्क्रीन पे है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं इसके बारे में और जान सकते हैं चीज़ों के बारे में। ओके, तो ये टोटल हमारा था किसी को मेजरमेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास। ओके।